Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 8, Semester 2, Chapter 7, following Mahatma Part 1, Video 2. This video is for GSCB students. So in last video we discussed about arrival of Gandhiji topic. Now after arrived in India, what kind of activity done by Mahatma Gandhi, that is we have to discuss in today's video. So before I start this video, I would like to tell you that subscribe the channel, press the bell icon and like the video. Okay, so in this video we are going to talk about different kind of satyagraha. So in last video we discussed the meaning of satyagraha, truth and non-violence. These were the two weapons of Mahatma Gandhi. Now how did he use these two weapons against British rule? That is going to discuss here. Okay, so let's discuss about first Champaran Satyagraha. So Champaran was a place in Bihar near Nepal in the foothill of the Himalaya. It was famous for plantation. The European landlords forced the farmer to produce indigo on 3/20th part portion of their land and sell it at lower rates to them. On the request of Rajkumar Shukla, Gandhiji decided to about the issue. But before the inquiry could start, he was given the order by the magistrate of Champaran to leave the district with immediate effect. Gandhiji ignored this notice. Gandhiji prepared a list of problems faced by farmers and presented it before the British government. Gandhiji stayed in Motihari village of Champaran and protested against the injustice. Ultimately, the Champaran Satyagraha, also known as the Indigo Satyagraha, captured the attention of people all over India. तो यहाँ पे यह है चंपारण, जो नेपाल के फुट हिल में आया हुआ है. वहाँ का वो टाइम का ये सब पिक्चर्स है कि किस तरह गांधी जी ने लोगों की बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचाई. अब वहाँ पे एक्चुअली में इंडिगो के प्रोडक्शन को ब्रिटिशर्स फोर्सफुली कल्टिवेट करवाते थे. क्यों? क्योंकि इंडिगो जो है वो क्लोथ डाइंग के काम में आता है. ब्लू कलर उसमें से बनता है. तो ये वो टाइम का सिनारियो है कि देखिए हमारे फार्मर्स की कैसी हालत है. अब यहाँ पे जब लोगों की बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने उसको अपने हिसाब से रिप्रेजेंट किया ब्रिटिशर्स के सामने. और इस तरह से ये फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में 1917 में चालू हुआ. उसके और कुछ भी फैक्ट हैं. अलोंग विद टीम ऑफ लॉयर, गांधी जी ट्रैवल्ड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट टू गेट first aid account of the suffering. These statements was recorded under a formal system, set up basic schools to fight illiteracy and generate awareness, organize veteran supports and fresh volunteers, organize detailed surveys, villagers could speak freely and describe the atrocities, यानी जो उनके साथ फोर्सफुली होता था वो. लेड cleanup of village, building of schools and hospital, encourage village to end पर्दा, untouchability and suppression of women. तो गांधी जी का इंटेंशन सत्याग्रह के पीछे यहाँ हमें क्लियर दिख रहा है कि ब्रिटिश पॉलिसीज जो अनजस्ट थी उसको तो प्रोटेस्ट करना ही है, पर साथ में जो हमारे सोशल एबिल्स थे उनको भी दूर करना एक गांधी जी का कॉन्सेप्ट था. गांधी जी क्लीनलीनेस के ऊपर बहुत ध्यान देते थे. ये है राजकुमार शुक्ला जिन्होंने गांधी जी को हेल्प की थी. अराउंड 1907 शुक्ला अलॉन्ग विथ वन शेख गुलाम स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग local petitions against forcible indigo plantation. In 1916, on suggestion of Ganesh Shankar Vidyarthi, he set out a journey that would change the course of history. He went to Lucknow to convince Gandhiji to visit Champaran. At first, Gandhiji was reluctant, but Rajkumar Shukla did not stop trying. Finally, giving in to his resistance, गांधी जी came to Champaran and the rest is history. तो गांधी जी
इतने पॉपुलर वो टाइम पे हो गए थे साउथ अफ्रीका के आने के बाद कि गांधी जी जहाँ पे भी जाते थे वहाँ ऑटोमेटिकली मीडिया का अटेंशन होता था। और ये सत्याग्रह को इन कॉन्सेप्ट लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। ये है विलेज मोतिहारी, अभी का वहाँ का रेलवे स्टेशन। अब इसके बाद कांस्टेंट सत्याग्रह चालू रहे हैं कि किस तरह से नॉन वायलेंस और ट्रूथ की इफेक्ट हुई। अब यहाँ पे एक है खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अब ये सत्याग्रह से जो एडवांटेज होने वाला था वो काफ़ी बड़ा था। पहले ये पिक्चर देख लीजिए, यह है खेड़ा सत्याग्रह की पिक्चर। यहाँ से हमें आयरन मैन ऑफ इंडिया मिलने वाले थे। ये देखिए कितने लोग गांधी जी जब बोलते थे तो इकट्ठा हो जाते थे। सो दिस इज़ द पॉपुलैरिटी ऑफ गांधी जी। खेड़ा district of Gujarat experienced famine in the year 1970. The agriculture production was destroyed. Still, the British government, instead of waiving the tax, tried to collect tax from farmers. Under the leadership of Gandhiji, the farmers started satyagraha against the Britishers. Gandhiji told the farmers that they would not pay the tax until the government accepted their demands. Sardar Vallabhbhai Patel quit his practice as a lawyer as a mark of protest and joined Gandhiji. Gandhiji wrote a letter to the collector that if the tax of poor farmers was waived, then the richer farmers would pay the regular tax. At the end, the collector passed an order for the same in 1918 and the movement was successful. तो 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में फेमिन आ गया था, कोई क्रॉप्स ग्रो हुआ नहीं था। ब्रिटिशर्स ने टैक्स रिलीफ देने के बदले टैक्स कलेक्शन का रखा। गांधी जी ने सब फार्मर्स को बोल दिया कि कोई टैक्स भरेगा नहीं जब तक उनकी बात एक्सेप्ट नहीं होती है। फिर गांधी जी ने कलेक्टर को लेटर लिखा कि अगर पुअर फार्मर का आप टैक्स रिलीफ कर दोगे तो उसके बदले में जो रिच फार्मर है वो टैक्स पे करेंगे, और वो ऑफ़र एक्सेप्ट की गई। और इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी को मिले। The Kheda Satyagraha did not yield much result, but it became important because of the principles of the basis of which it was fought. The farmer became aware, fearless, and courageous. The most important outcome was that the nation and Gandhiji got a devoted and committed leader like Vallabhbhai Patel. तो खेड़ा सत्याग्रह की इम्पैक्ट इतनी नहीं हुई, पर उसके जो जिस हिसाब से वो प्रोटेस्ट हुआ था वो नोटबंदी था। और मेन अचीवमेंट उसमें से था सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि आगे जाके जब ब्रिटिश इंडिया फ्री होगा तो उसका यूनिफिकेशन जिसने किया था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। पर उसका स्टार्टिंग, वो स्टोरी का स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट बोला। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी थोड़े बहुत राइट्स ब्रिटिशर्स के ने दिए थे वो भी यहाँ पे डिनाइड हो गए थे। इंग्लैंड वॉज विक्टोरियस इन द World War I. At the same time, Rowlatt Act was implemented by the Britishers to control the public unrest and control the anti-colonial activities. The Rowlatt Act authorized the government to exercise stricter control on the press, arrest without warrant, and indefinite डिटेंशन इन जेल विदाउट वारंट। तो यहाँ पे प्रेस के ऊपर कंट्रोल आ गया, कोई कुछ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिख नहीं सकता था, किसी को भी कभी भी विदाउट वारंट इश्यू किया जाता था, अरेस्ट किया जाता था, और उसको कोर्ट में प्रेजेंट किए बिना अपनी मर्जी से चाहे उतने टाइम तक जेल में बंद किया जाता था। The accused were denied the right to know the accusers and the evidence used in the trial against them. यानी जो जेल में बंद है वो पूछ भी नहीं सकता था किस लिए मुझे अरेस्ट किया है, आपके पास एविडेंस क्या है। दिस एक्ट वॉज अ कंप्लीट वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट एंड कॉल इट द ब्लैक एक्ट। तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और इसको ब्लैक एक्ट का नाम दिया। द रॉलेट सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ द एंटायर नेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये ऐसा जब से ब्रिटिशर्स आए थे उसके बाद ये एक
ऐसा सत्याग्रह था जो पूरी कंट्री में सब लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे, बट इट वॉज लिमिटेड टू द बिग सिटीज़ ओनली. Rallies were organized and strikes were called out to protest against the act throughout the country. The Britishers restored to suppression to curb this movement. ब्रिटिशर्स ने इसको दबाने की बहुत कोशिश की. इसकी मेन इफेक्ट जो थी वो सिटीज़ में थी, रूरल एरिया में उतना सपोर्ट नहीं था, पर फिर भी यूनिटी की स्टार्टिंग यहाँ से हुई ऐसा बोला जाता है. Allow the British to jail protesters without a trial for up to 2 years. अगर किसी ने प्रोटेस्ट किया तो उसको 2 साल के लिए जेल में बंद किया जाता था. Many protests spring up in Punjab, a high concentrated area of Indian veterans from the war live here. फिर ये सिचुएशन थी, इस तरह हमारे लोगों को सप्रेस किया जाता था. जो भी प्रोटेस्ट करने जाता था उनको कोई भी मतलब में क्राइम में जेल में बंद कर देते थे. उसके बाद आता है जलियांवाला बाग मास्कर. अब ये वो इंसिडेंट है जहाँ पे पूरी यूनिटी जो हमें चाहिए थी, एक सेंटीमेंट चाहिए था, एक सेंसिटिविटी चाहिए थी, वो मिली थी. और जो भी हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था. 1919 की बात है. As a part of the protest against the Rowlatt Act, the people of Punjab announced a strike on 30th March and 6th April 1990. क्योंकि पंजाब के जो 2 लीडर थे फेमस, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको अरेस्ट कर दिया गया था. The condition of Amritsar was almost out of control and looking at this, martial law was declared in Amritsar. यानी पुलिस परमिशन के बिना कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है. General Dyer, a meeting was organized on 13th April, day of Baisakhi, in the Jallianwala Bagh to pay tribute to martyrs and also to protest against the arrest of Dr. Satyapal and Dr. Kichlu. ये मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ. ये है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू. अब आर्टिकल से वो पहले पढ़ते, फिर ये पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ. Approximately 10,000 people had gathered in this meeting. General Dyer blocked the only exit of the Bagh and ordered firing at the unarmed people gathered there. वहाँ पे जनरल डायर पहुँच गए. वहाँ के ऑफिसर, एक ही गेट था गार्डन में आने जाने का, वहाँ पे अपने पुलिसमैन को खड़ा कर दिया और फायर का ऑर्डर दे दिया. अंदर जितने भी लोग थे उनके पास कोई भी वेपन्स नहीं थे. द फायरिंग स्टार्टेड विदाउट एनी प्रायर नोटिस और वार्निंग. ऐसे ही बिना कोई भी नोटिस के सीधा फायरिंग चालू कर दिया. देयर वर हाई वॉल्स अराउंड इट सो पीपल कुड नॉट एस्केप द कॉन्स्टेंट फायरिंग. चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थी, अब वहाँ से कोई भाग नहीं सकता था. इट स्टॉप्ड ओनली व्हेन द सोल्जर्स रैन आउट ऑफ एम्यूनिशन. फायरिंग तभी बंद हुई जब उनकी गोलियाँ ख़त्म हो गई. As per the official record, 379 dead and 1,200 were injured, but in reality, the casualties were much more than mentioned in the official report. Gandhiji completely lost his faith in the British sense of justice and fairness. तो यहाँ पे गांधी जी की जो उनके अंदर ट्रस्ट थी कि ब्रिटिशर्स आज नहीं तो कल मान जाएंगे, तो वो उनका जो फेथ था, उनका ट्रस्ट था, वो टूट गया. अब यहाँ पे देखिए किस तरह से गोलियाँ चली थी. ये देखिए, ये जितने भी देख रहे हैं ये गोलियों के निशान हैं. और ये जलियांवाला बाग की वॉल है. ये वो वेल है जिसके अंदर अपनी जान बचाने के लिए सब कूदे थे, जंप किया था. और इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई थी कि ये पूरा वेल जो है वो डेड बॉडी से भर गया था, क्योंकि 10,000 लोग. अब ये देखिए गोलियों के निशान, ये सब गोलियाँ चली थी. तो यहाँ जनरल डायर का एक स्टेटमेंट है. आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट बेटर. सो मैनी पीपल हु न्यू द कंडीशंस इन अमृतसर से दैट आई डिड राइट, बट सो मैनी अदर्स से आई डिड रॉन्ग. आई ओनली वॉन्ट टू डाई एंड नो फ्रॉम माई मेकर वेदर आई डिड राइट और रॉन्ग. जनरल रेजिनल्ड डायर. तो जनरल डायर को लगा कि उन्होंने जो किया वो अच्छा किया, पर एक बात है कि निहत्थे थे लोगों पर गोलियां चलाना, उनको मारना कहाँ से अच्छी बात हुई. ब्रिटिशर्स हमको एनिमल से भी गया गुजरा समझते थे. अब उसकी इम्पैक्ट क्या हुई,
The award given by the King or Queen of England to a person for an outstanding successor or public worker or talent. Rabindranath Tagore renounced the knighthood as a protest against the जलियांवाला बाग massacre. रविंद्रनाथ ने अपना अवार्ड जो था वो वापस दे दिया. अब इस तरह से अवार्ड वो टाइम पे मिलता था. ये है रविंद्रनाथ टैगोर. और भी बहुत सारी बातें इसके बारे में हम देखते हैं अभी. Efforts were made to unite Hindus and Muslims during the Rowlatt Satyagraha. Gandhiji wanted that the Hindu and Muslims should stand united to attain justice. तो 1905 में जब बंगाल का डिवीज़न हुआ और 1906 में जब मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश हुआ तो वही टाइम पे हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी ब्रेक हो चुकी थी. अब जब जलियांवाला बाग मास्कर हुआ तो उसमें मरने वाले हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे. तो गांधी जी ने सबको अपील की कि अब इस इनजस्टिस को मिटाने के लिए हमें यूनाइटेड होना ही पड़ेगा. और इसकी इम्पैक्ट इतनी हुई क्योंकि इतने बेकसूर लोग मर गए थे तो उसके पीछे पूरे इंडिया का सपोर्ट था. और इसका बेनिफिट गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए किया. वही ड्यूरेशन एक खिलाफत मूवमेंट हुई थी जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने के एक प्रेडिक्शन महात्मा गांधी जी ने की थी. बट वो लॉन्ग टर्म नहीं चली थी. फिर भी वो क्या था, तो आफ्टर अटेनिंग विक्ट्री इन द वर्ल्ड वॉर वन द अलाइड नेशन साइन अ ट्रीटी विद टर्की विच वॉज डिफीटेड. द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस ट्रीटी वॉज स्ट्रिक्ट एंड अनजस्ट टू टर्की. द सुल्तान ऑफ टर्की वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम टू. तो ये है सुल्तान. ये जो थे वो पूरे मुस्लिमों के हेड होते थे. मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया लॉन्च प्रोटेस्ट इन फेवर ऑफ द खलीफा, जिनको खलीफा के नाम से बुलाया जाता था. एज पर द ट्रीटी हिज खिलाफत यानी जो उनकी पोस्ट थी वो टर्मिनेटेड कर दी गई, यानी उनको वहाँ से निकाला गया. तो उसकी वजह से पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम थे विथ इंडिया के मुस्लिम, उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. दिस मूवमेंट इन इंडिया वॉज नोन एज द खिलाफत मूवमेंट. और ये मूवमेंट इंडिया में जो है वो खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानी गई. द मेन लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट्स वेर द अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली. तो ये दोनों भाई हैं, शौकत अली एंड मोहम्मद अली. ये इसके इंचार्ज थे वो टाइम पे. गांधी जी डिसाइडेड टू सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट एंड इन टर्न जॉइन द मुस्लिम इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मास्कर. तो गांधी जी ने हिंदुओं को बोला कि आप इनको सपोर्ट करो, फिर इनको बोला कि आप जलियांवाला बाग मास्कर के लिए हिंदुओं को सपोर्ट करो. His intention was to demand स्वराज्य with a combined power of the Hindu and Muslim communities. क्योंकि अगर एक साथ में रहेंगे तो वो आपको स्टोरी पता ही है कि एक फार्मर था, उसके 4 लड़के थे, एक एक स्टिक दी, सबने तोड़ दी, फिर स्टिक का बंडल दिया तो किसी से नहीं टूटा. यही चीज़ गांधी जी ने यहाँ पे अप्लाई की, सबको समझाया कि अगर हम यूनिटी में रहेंगे तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम जा सकते हैं. अब ये खिलाफत समिति स्थानीय हिजरत समितियाँ पूरे भारत में फैली हुई थी. पेशावर समिति ने हिजरत की तैयारियों की जिम्मेदारी उठाई. हिजरत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मस्जिदों का उपयोग किया जाता था. मौलवी मस्जिद के मेंबर से उपदेश देते कि जो मुस्लिम पलायन नहीं करेंगे वे काफिर बन जाएंगे. लेखकों ने गद्य व कविता के माध्यम से लोकप्रिय भावनाओं को उभारा. अफगानिस्तान में लुभावने जीवन की संभावनाओं को प्रकाशित किया. डॉक्टर श्रीरंग गोडबोले प्रख्यात था. तो खिलाफत समिति जो बनी थी उसके बारे में लिखने वाले हिंदू थे और ये मूवमेंट का इंटेंशन एक ही था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक हो जाए. उसके बाद जो इंसिडेंट्स हुआ वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का था, पर इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. आई होप कि यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपके समझ में आ गया होगा. अगर कोई इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी एंड आई विल गिव यू आंसर ऑफ दैट. ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.